اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 24 فروری 627 عیسوی بمطابق یکم شوال 5 ہجری قریش کا لشکر مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، 2 جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینے سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ آور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اود کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت عرب کی سرزمین میں کسی لڑائی میں اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا گیا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، یا وہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا۔ خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار ہرا میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور انہیں رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینے کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف نکال دو گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوئے ہوئے یا خوفزدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا، اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا نام سلمان فارسی تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرکردہ رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔
कुरैश के ताजिरों ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में बताया कि उनके कबीले के एक आदमी का दिमाग चल गया है और उसने नबुव्वत का दावा किया है। एक दो मुसलमानों ने अकीदतमंदी से सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनाई। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ये सब सुनकर चौंक उठे। उन्होंने उन मुसलमानों से कुछ और बातें पूछी। उन्हें जो मालूम था वो उन्होंने बताया, लेकिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु तिश्नगी महसूस कर रहे थे। वो इतना मुतासिर जरूर हो गए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। कुछ अरसे के बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साए में जा बैठे। उन्हें वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो मारे मारे उम्र गुजार रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। उस वक्त तक सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे। अपने मुल्क में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ मजहबी पेशवा ही न थे, वो जंगी उलूम के माहिर तस्लीम किए जाते थे। उस दौर के मजहबी पेशवा भी जंगो जदल और सिपाहगरी के माहिर होते थे। इल्म अदब के आलिम भी सिपाही होते थे। लेकिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदा ने जंगो जदल के उमूर में गैर मामूली जहानत दी थी। अपने मुल्क में जब कोई लड़ाई होती थी या दुश्मन हमलावर होता था तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को बादशाह तलब करके सूरत हाल उनके आगे रखता और मशवरे लेता। नामवर सालार भी उनके शागिर्द थे। वो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में शामिल थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत हाल जो कुरैश ने आपके लिए पैदा कर दी थी सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के आगे रखी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खंदक खोदो जो सारे शहर को घेरे में ले ले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां बैठे हुए तमाम सहाबा कराम और सालार एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये क्या कह दिया है। अरब खंदक से वाकिफ नहीं थे। फारिस में जंगों में खंदक का रिवाज था। सबको हैरान देखकर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि खंदक क्या होती है और उससे दिफाई काम किस तरह लिया जा सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद तारीख के नामवर सालार थे खंदक की जरूरत और आफादियत को समझ लिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दीगर सालार शशोपंज में पड़ गए। उनके लिए इतने बड़े शहर के इर्द गिर्द इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी खंदक खोदना नाकाबिल फहम नहीं था, लेकिन उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना था। खंदक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का हिसाब कर लिया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने वालों की तादाद का हिसाब किया। आप अलैहिस्सलाम ने खुदाई का काम उस तादाद पर तकसीम किया तो 110 आदमियों के हिस्से में 40 हाथ खुदाई आई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग खंदक को अभी तक नहीं समझे और वो खुदाई से हिचकिचा रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये देखते ही मुसलमान कुदालें और बेलचे लेकर नारे लगाते हुए जमीन का सीना चीरने लगे। उधर से उस वक्त के एक शायर हस्सान बिन साबित आ गए। हस्सान मशहूर नातगो थे जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने साथ रखा करते थे। उस मौके पर जब मुसलमान खंदक खोद रहे थे हस्सान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसे अशार तरन्नुम से सुनाने शुरू किए कि खंदक खोदने वालों पर वज्द और जुनून की कैफियत तारी हो गई। खंदक की लंबाई चंद गज नहीं थी, उसे मीलों दूर तक जाना था। शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबल बिन उबैद तक ये खंदक खोदनी थी। जमीन नरम भी थी और संगलाख भी, और ये निहायत तेजी से मुकम्मल करनी थी क्योंकि दुश्मन सर पर आन बैठा था। कुरैश का लश्कर इस अजीब गरीब तरीका दिफा से बेखबर ओहद की पहाड़ी के दूसरी तरफ खैमजन था। उसके पीछे यहूदियों का हाथ था। चलते चलते खालिद को अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अहले कुरैश तो ठंडे पड़ गए थे, उन पर मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। खालिद बिन वलीद का घोड़ा अपनी मर्जी की चाल चला जा रहा था। मदीना अभी दूर था। खालिद को झेंप सी महसूस हुई। उसके कबीले कुरैश ने उसे शर्मसार कर दिया था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि यहूदियों के उकसाने पर उसके कबीले के सरदार और सालार अबू सुफियान ने मदीने पर हमले का फैसला किया था, लेकिन वो खुश था कि हमले का फैसला तो हुआ। इतना बड़ा लश्कर जो सरजमीन अरब पर पहली बार देखा गया था यहूदियों ने ही जमा किया था, लेकिन खालिद उस पर भी मुतमईन था कि किसी ने भी ये काम किया हो, लश्कर तो जमा हो गया था।
वो उस रोज बहुत खुश था कि इतने बड़े लश्कर को देखकर ही मुसलमान मदीने से भाग जाएंगे। अगर मुकाबले पर जम भी गए तो घड़ी दो घड़ी में उनका सफाया हो जाएगा। वो उस वक्त बहुत ही खुश थे जब ओहद की पहाड़ी की दूसरी तरफ ये सारा लश्कर खैमजन था। जिस सुबह हमला करना था उस रात उस पर ऐसी हैजानी कैफियत तारी थी कि वो अच्छी तरह सो भी न सका। उसे हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही थी। दूसरी सुबह जब कुरैश और दूसरे इत्तेहादी कबाइल का लश्कर, जिसकी तादाद 10,000 थी, खैमागाह से निकलकर मदीने पर हमले के लिए शहर के करीब पहुंचा तो अचानक रुक गया। शहर के सामने एक बड़ी गहरी खंदक खुदी हुई थी। अबू सुफियान जो लश्कर के कल्ब में था, लश्कर को रुका हुआ देखकर घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ आगे गया। अबू सुफियान चिल्लाता जा रहा था, कुरैश के जंगजू क्यों रुक गए हैं? तूफान की तरह बढ़ो और मोहम्मद के मुसलमानों को कुचल डालो, शहर की ईंट से ईंट बजा दो। अबू सुफियान का घोड़ा जब आगे गया तो उसने घोड़े की लगाम खींच दी और उसका घोड़ा उसी तरह रुक गया जिस तरह उसके लश्कर के तमाम सवार रुके खड़े थे। उसके सामने खंदक थी, उस पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान ने गुस्सीली आवाज में कहा, खुदा की कसम ये एक नई चीज है जो मेरी आंखें देख रही हैं। अरब के जंगजू खुले मैदान में लड़ा करते हैं। खालिद बिन वलीद को बुलाओ, इक्रिमा और सफ़ान को भी बुलाओ। अबू सुफियान खंदक के किनारे किनारे घोड़ा दौड़ाता ले गया। उसे कहीं भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से उसका लश्कर खंदक उबूर कर सकता। ये खंदक शेखीन की पहाड़ी से लेकर जबले बनी उबैद के ऊपर से पीछे तक चली गई थी। मदीना के मशरिक में शेखीन और लावा की पहाड़ियां थी। ये मदीने का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे हों। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, इक्रिमा और सफ़वान के घोड़े थे। अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोदकर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद बिन वलीद पर खामोशी तारी हो गई थी। आज मदीने की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली की नहीं दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद बिन वलीद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बुरी तरह शिकस्त दी थी। खालिद बिन वलीद ने अकेले बैठकर उस लड़ाई का जायजा लिया था। मुसलमानों की इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। उसे ख्याल आया कोई और बात भी थी खालिद, कोई और बात भी थी, कुछ भी था। मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर था या उसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक्ल जिस अमल और जिस मुजाहिरे को समझ नहीं सकती उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। अबू सुफियान खालिद, इक्रिमा और सफ़वान से कह रहा था, खुदा की कसम हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद दी है। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक उबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद बिन वलीद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक उबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा, खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, उन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देखकर कहा, क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये न समझें कि हम बौखला गए। इक्रिमा ने कहा, हमें तमाम तर खंदक देख लेनी चाहिए। सफ़वान ने कहा, कहीं न कहीं कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां से हम खंदक उबूर कर सकें। खालिद बिन वलीद ने खुद एतमादी से कहा, महासरा। मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम महासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक न एक दिन खुद ही खंदक के इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने उन तीनों नायब सालारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदक को देखने के लिए जबले बनी उबैद की तरफ चल पड़ा। सलाह की पहाड़ी मदीना और जबले बनी उबैद के दरमियान वाक़ थी। मुसलमान उसके सामने मोर्चा बंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका।
सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीने के अंदर तक गया था। वो मदीने से शेखीन के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अबू सुफियान ने उससे पूछा, अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? उसने कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सके। यहूदी ने कहा, मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ्फुज के जो इंतजामात कर रखे हैं वो इस तरह है। ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे कलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफों को पीछे की तरफ वाले कलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है उसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्ला हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बर्छियां बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के खैश खंदक से बाहर आकर तुम पर शबखून मार कर वापस चले जाएं। अबू सुफियान ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन उबई क्या कर रहा है? यहूदी जासूस ने कहा, ऐ कुरैश के सरदार, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमाते मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। उसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर ओहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली। तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार न हो। अबू सुफियान ने पूछा, और हुये बिन अख्तब कहाँ है? खालिद बिन वलीद को मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसके जेर कमान था उसे उसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन उससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमाया तौर पर बेचैनी नजर आने लगी। मौरिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा न था, लोगों को रोजाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकार दरपरता हरकत में आ गए थे। कोई भी न जान सका कि ये आवाज कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें एक ऐसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर और किसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने उसकी नबूवत का ये असर भी न देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो पेट की आवाजों से मुतासिर होने लगे। आखिर एक आवाज ने उन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना? ये एक रात की कड़क की तरह आवाज थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरें और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप अलैहिस्सलाम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मौत से भी रूनुमा हो सकते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं। न कोई इंसान आप अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत और रिसालत का दर्जा हासिल करेगा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम उन इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी उन लाजवाल जिस्मानी और नफ्सियाती कुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने उन्हें अता की हैं इस्तक़लाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मौज़ज़ानुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहासरे के दौरान आप अलैहिस्सलाम की सरगर्मियां और आप अलैहिस्सलाम की हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप अलैहिस्सलाम को इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और उनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि उनमें से बाज खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।